Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is a brand new program called Beyond Borders. Assalamu alaikum आपना. Walaikum Assalam, Hassan. How original is your title? है ना? हाँ. Content without beyond without content नहीं, without हमने- beyond की जगह without borders भी हो सकता है वैसे. Without borders. Without borders. What do you like? What do you prefer? Worldwide content. नहीं, boring. Content without borders. Content beyond borders. Anyway, but what are you discussing in this Content Beyond Borders इस पे program? ये बेसिकली हमने एक सेगमेंट शुरू किया था अभी रमजान से फौरन पहले. एक ही आई थिंक हमने उसकी एपिसोड की थी which was called Weekend Watch. Which was called Weekend Watch, and because we reviewed Ajeeb Dastans in it, which was all like very, very risque content. That फिर was the हमने- second episode. Was it? Yeah. The first episode was on something that I don't remember now. अच्छा. It was one of the movies. Okay. वो कौन सी थी? कोई एक मूवी देखी थी. Anyway, so the concept of this program is that we will be reviewing international content. So it बहुत सी हमारे पास रिक्वेस्ट थी, बहुत लोगों ने हमें लिखा कि प्लीज़ करें. A lot of people who don't watch television in Pakistan, who live abroad, and who watch a lot of Netflix or Prime Video or movies or whatever. और international TV shows, exactly. तो वो हम करेंगे. इससे दो फायदे होंगे. एक तो ये कि इंशाल्लाह हमारी फैमिली ग्रो करेगी जी. जो हमारे प्यारे व्यूवर्स जो कम्युनिटी है हमारी जी. होपफुली विल बी एबल टू टैप इनटू अ न्यूअर मार्केट और न्यूअर सेगमेंट ऑफ व्यूवर्स. लेट्स पुट इट दैट वे. जी. एंड दूसरा फायदा ये होगा कि जो हमारे बहुत सारे व्यूवर्स जैसे आप राइटली कह रही हैं कि काफ़ी अरसे कहते रहते हैं जी. कि यार ये भी रिव्यू कर दें वो भी करते हैं. जैसे धूप की दीवार की बहुत हमें recommendations आ रही हैं. जी. I have started watching it. I don't know about So Amna. have I. Amna's also started watching it. So inshallah maybe sooner The than only later. reason why we weren't watching it initially was because एक तो ये कि it's 18 episodes. Already हम इतने ड्रामे देख रहे होते हैं हर हफ्ते कि एक मजीद ड्रामा देखना. पहले भी हमने देखा ऑफ कोर्स. दूसरी चीज़ है अवेलेबिलिटी शुरू में ज़रा नहीं थी. And we felt that it was not right to review something as Pakistani content which was not accessible to the Pakistani viewer. But now apparently it is all accessible on YouTube. True. I am not watching it on YouTube. मुझे actually shout out to Sahad fans. उन्होंने मुझे figure out करके दिया है कोई तरीका और screen. Well, I'm actually watching it on Z5. So मैंने एक दो एपिसोड जो देखी हैं वो YouTube पे देखी हैं. I don't think YouTube has all 18 episodes. But कोई Play TV है या कोई ऐसी चीज़ है उस पे भी हाँ जी वहाँ पे. So we'll figure that out as well. जी. अच्छा, content without borders, I like it. Okay. Content without. तो एक छोटी सी मैं आपसे क्योंकि रहा नहीं जाएगा, आपने जरूर एक छोटा सा लेक्चर देना है देखने वाले क्योंकि वो मुझे पता है अभी मिस्कीन लोगों को कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे. दिल बड़ा करें और दिल खोल के ये आपने ये समझना है कि हम किसी पर्टिकुलर मुल्क का कंटेंट ना प्रमोट कर रहे हैं ना उसकी बुराई कर रहे हैं. इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि इंटरनेशनली जो कंटेंट बन रहा है हम उसको देख के उसको समझें, उससे सीखें और ये भी असेस करें कि इंटरनेशनल कंटेंट के मवाजने में पाकिस्तान में किस तरह का कंटेंट मवाजना. हाँ कि इन कंपैरिजन व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट What आर वी does मवाजना mean? इन कंपैरिजन आई थिंक अच्छा. कि तनाजुर में एक्चुअली तनाजुर. Oh my God, वर्ड वुड बी तनाजुर में. Another complicated word. तो इंटरनेशनल कंटेंट के तनाजुर में लोकल कंटेंट हमारा कैसा बन रहा है. ठीक है. और क्या ऐसे प्लॉट लाइंस इंटरनेशनली भी देखने को मिल रहे हैं जो हम लोकली देख रहे हैं जी. और अगर इंटरनेशनली बेहतर कंटेंट बन रहा है तो व्हाट्स स्टॉपिंग अस फ्रॉम क्रिएटिंग दैट सेम काइंड ऑफ कंटेंट और सिमिलर. I wish I could eyebrow lift right now. Why not? Because then I can't because I don't have the muscular. No, neither do you. That's not an eyebrow lift. I wish I could do an eyebrow lift and I'd say agar. अगर बन सकता है सब कुछ हो सकता है. Right. तो आज हम क्या डिस्कस करें. इसमें टाइटल ब्रेक में जाना या नहीं जाना. नहीं. क्यों. बिकॉज आप एक ही बात करते हैं टाइटल ब्रेक में. आपने फिर सब्सक्रिप्शन नहीं तो मांगी है हम चाहेंगे लोगों ना से. कि वो टाइटल बने हमारा कुछ इसका मजे का. जी, तो कंटेंट विदाउट बॉर्डर्स. मेरे ख्याल है वो बीच में वैसे फिट हो जाएगा. ठीक है जी. जरूरी नहीं कि आप टाइटल ब्रेक. नाम क्या डिसाइड किया आपने. वो भी बात वो आपने कर लिया ना. कंटेंट विदाउट बॉर्डर्स. यू लाइक इट. नो. बियॉन्ड बॉर्डर्स. I prefer Beyond Borders. Beyond Borders. Content without borders. That's like 6 syllables. Beyond Borders or without borders? Without borders. Borderless. Borderless. That sounds like a movie as opposed to a Borderless program. content. नहीं. नहीं.
Can we discuss this later? हाँ. Basically हम आज आपने देखा क्या क्या है और कहाँ देखा है? What all देखिए have जी, you been? मैं आजकल What all have you been watching? मैं आजकल नेटफ्लिक्स पे काफ़ी अपना टाइम लगा रहा हूँ. जैसे कि आपके पास क्योंकि ड्रामा नहीं थे देखने को. नहीं, मैं एक्चुअली बीच में छोड़ दिया था नेटफ्लिक्स इस्तेमाल करना बिल्कुल ही, बिकॉज ड्रामे वही वाली बात है. बट ये पिछले 1-2 हफ्ते हमारे थोड़ा इतना प्रेशर नहीं था ड्रामों का, तो आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन नेटफ्लिक्स. एक तो जो मैंने मूवी देखी विच इज़ कॉल्ड हसीन दिलरुबा, जो आपने भी देखी, उसके बारे में अगर आप चाहें तो हम बात कर सकते हैं. मेरे ख्याल मैंने मिमी भी देखी है, उसके बारे में मेरे ख्याल है कि हम टाइटल बोल के डिस्कशन करके फिर हम एंड में उसके बताएंगे कि डू वी रेकमेंड यू वॉच इट और नॉट टू द व्यूअर्स. ठीक है. सो हसीन दिलरुबा आपको कैसी लगी? मुझे अच्छी लगी. Did you enjoyed it? I enjoyed it. What did you enjoy about it? I enjoyed, एक तो ये है कि I'm a sucker for thrillers. Right. And I really enjoy watching thriller movies, और मुझे mystery और thrillers मुझे बहुत पसंद है. जी. तो मैं हसीन दिलरुबा देखी भी इसीलिए बिकॉज मैं ढूंढ रहा था, उस दिन मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अच्छा सा थ्रिलर देखूं. जी, it's a murder mystery. It's a murder mystery. और मुझे actually I don't know if we can tell if it's a murder mystery or not. Everybody knows it's a murder mystery, Okay. but we're not going to give any spoilers in this review. of course, it's a proper review. There are no spoilers. Of course. So no spoilers at all. तो मैं देख रहा था. अच्छा, I think it's pertinent to mention कि मैंने हसीन दिलरुबा इसलिए मुझे मिली क्योंकि मैंने उससे पहले देखी थी तापसी की बदला. ठीक है. और तापसी ही की एक और फिल्म मैंने देखी. थप्पड़ नहीं, एक बदला थी, एक इनकी एक और फिल्म है बच्चन साहब के साथ. पिंक नहीं, थप्पड़. बदला थी ना, एक बदला थी, एक दूसरी है यार. Anyway, एक तो आप चीजें याद भी नहीं रखते. Anyway, तो तापसी तो मुझे रिकमेंडेशन में ही हसीन दिलरुबा. तो मैंने देखना शुरू की. मुझे याद है उस वक्त आपने मुझे बताया कि आपने पहला सीन देखा था, फिर आपने छोड़ दी थी. मैं क्योंकि खाना खा रही थी और पहला सीन थोड़ा ग्रूसम हो जाता है. मैंने कहा पता नहीं आगे भी कितना ग्राफिक हो और ब्लडी हो जाए, तो आई डोंट वांट टू वॉच लाइक ब्लड एंड गोर. So the story, but it's not at all bloody and gory. Okay, so the story begins with an explosion, and then you find out that तापसी, उनके कैरेक्टर का क्या नाम है? रानी. हाँ. रानी's husband ऋषु, जिनका नाम ऋषभ होता है. आई थिंक उनका निकनेम ऋषु होता है. तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि रानी पलट के जाती हैं, देखती हैं कि उनके घर में एक एक्सप्लोजन होता है और उनके जो हस्बैंड है ऋषु, उनका कटा हुआ हाथ वहाँ पे पड़ा, सिर्फ हाथ बचा होता है, बाकी बॉडी जल चुकी होती है. और वो कटा हुआ हाथ इसलिए उन्हीं का होता है बिकॉज उनका नाम रानी का टैटू हुआ होता है उनके हाथ पे. यहाँ से ये कहानी शुरू होती है. अब ये कहानी आगे बढ़ती है, शक जाता है ऑब्वियसली रानी के ऊपर कि रानी ने ही ये कत्ल किया है. उसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं और बैक स्टोरी जब खुलती है चलती है. अच्छा, नाउ देयर आर टू वेज टू सी दिस स्टोरी. एक तो वो है जो आपने कहा कि बिल्कुल ठीक है, इट्स अ मर्डर मिस्ट्री. सेकंड ये है कि आई मीन जो मेरे देखने का भी एक मकसद था वो ये था कि रानी इज अ कैरेक्टर दैट डज नॉट कन्फॉर्म टू द वैल्यूज दैट सोसाइटी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अ गुड वाइफ. वो मतलब है कि दिखाया हुआ है कि लड़की जो है शी इज ब्रॉट अप इन दिल्ली, एजुकेटेड, शी वांट्स रोमांस इन अ मैरिज, शी वांट्स एक्साइटमेंट. उसको जलवा चाहिए, उसको एक्साइटमेंट चाहिए. वो छोटे से शहर में जाके ऋषु के साथ वो बिकॉज शी इज़ बीन लेट डाउन इन लव, सो शी अग्रीज टू दिस मैरिज एंड शी कम्स टू दिस सिटी एट द बैक ऑफ बियॉन्ड एंड शी इज़ नॉट रियली हैप्पी अबाउट इट. मगर वहाँ आती है तो शी इज़ कॉन्स्टेंट एक्सपेक्टेशंस उसकी ऋषु से क्या है, डिलीवर क्या होता है, एंड देन ऑफ कोर्स शी गोज अस्ट्रे. And this is not a spoiler because उसके ट्रेलर में भी we see that a man comes into her life and you know that she's going to slip with him. Pun on the word slip. Slip or sleep or slip with him. और फिर ऋषु का मर्डर हो जाता है. तो अब आप देख रहे हैं कि जी ऑब्वियसली सारा शक तो रानी पे जाता है कि ओ ये अपनी शादी में भी नाखुश थी and she was frustrated and they used to fight all the time and she had an affair with this man who's like the epitome of, played by Harshvardhan Rane, epitome of men you have an affair with in a movie, right? All muscles and like all lambe baal, raptor, bodybuilder, all of that. एक और बड़ा interesting twist है कि रानी is a fan of murder mystery novels. तो वो जो पुलिस स्टेशन जाके और उसका बयान लेते हैं, वो बताना शुरू करती कहानी, तो she actually flavors it with her love for mystery. और पूरा पुलिस स्टेशन बैठ के सुनता है and you know they're like listening to her and they're intrigued by what she's saying but they don't believe that she's innocent.
I think it's very very well done. But that said, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, आपने जो बड़ा ज़बरदस्त एक पॉइंट ब्रिंग अप किया, मैं उसको कंडोन करना चाहूँगा और तायद करना चाहूँगी इसकी। वो ये कि तायद, okay. जो कुछ मर्डर मिस्ट्रीज या थ्रिलर्स हम देखते हैं, उनका थीम ही होता है कि अच्छा नाउ यू गॉट टू फिगर आउट कि ये जो क्राइम हुआ ये किसने कमिट किसने किया है, जी। बाकी चीज़ें इतना मैटर नहीं करती। बट द गुड थिंग अबाउट हसीन दिलरुबा इज कि उसमें रिलेशनशिप्स का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू है पूरी फिल्म में जी। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि वो इट वाज लाइक अनदर कैरेक्टर, जो द रिलेशनशिप बिटवीन रिशु एंड रानी, तो वो एक पूरे उस किरदार की तरह उसको निभाया गया और उसको रखा गया, तो वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात किया। बिल्कुल what I love about Rani and what I loved about Hसीन दिलरुबा is that उन्होंने बड़ा क्लियरली दिखाया that what a woman wants in a relationship. हमेशा हमें एक पेट्रियार्की की आंख से देखा जाता है कि एक लड़की की शादी हुई है, जैसे उसकी सास कहती है कि सुशील हो, सुंदर हो, गोरी हो, पकाती क्या है, गाना गाती, you know, all of those requirements of a good wife. What does she want from the marriage? What does she want? She wants excitement. She's not getting it. And how many women get it? And I think that's a whole other discussion कि कितनी औरतों को रोमांस मिल जाता है अपनी शादी में, कितनी औरतों को एक्साइटमेंट मिल जाती है अपनी शादी में, कितनी औरतों के जो ख्वाब होते हैं दे गेट दैट। वो जो ट्रेलर में वो कहता है ना कि रानी जी कैसा पति चाहिए था फिर आपको, एंड ही सेज कि आपको जो चाहिए वो 6 मर्द मिल के एक बनते हैं, एक मर्द में तो ये सब कुछ नहीं, अलग अलग आपको पति चाहिए, एक बंदे में तो ये चीज़ नहीं मिलती। But yeah, I mean that's what any dreamy girl would want. Yeah, you want that everything, a little bit of everything in a relationship. So ये बहुत excitement थी। वो ये ना, the onus is on the man this time, not on the woman के एक औरत। No, she's trying to generate भाई, she's trying to generate excitement. ये मैं कह रहा हूँ ना कि रिशु कुछ कर ही नहीं पा रहा था। मैं यही कह रहा हूँ ना कि ऐसा नहीं है कि यार के ख्वातीन से ही एक्सपेक्टेशंस हमेशा होती हैं कि एक शादी को आप चलाएं। हाँ। मर्दों से भी एक्सपेक्टेशन वो होती है चाहिए। और वो दिखाया इंटरेस्टिंग। तो कहने का मतलब ये कि एक पॉइंट पे आप इस बात में भी इंटरेस्टेड होते हैं कि ये हुआ क्या है। हाँ। ये क्राइम और ये मर्डर मिस्ट्री, इसका ये जा किस तरफ रही है, बट उससे ज्यादा आपका इंटरेस्ट इसमें भी होता है कि रिशु और रानी के बीच में ये जो चल रहा है। एट सम पॉइंट वो कहती है कि रिशु हमारे बीच में कोई ज्वाला नहीं फटने वाला, आई मीन इज गिवन अप ऑन द रिलेशनशिप। अनफॉर्चुनेटली आई फेल्ट के सेकंड हाफ के बाद इट काइंड ऑफ गोज कंप्लीटली हेयरवायर, रियली टोटली। इसलिए कि जो दिखाते हैं ना डेवलपमेंट्स आफ्टर द फर्स्ट, लाइक आफ्टर द इंटरवल, once Rishu realizes that she's having an affair, उसके बाद everything just goes haywire. I thought बहुत कम होता है कि आप सोचते हो कि यार this is not plausible anymore. And the end, of course, without giving any spoiler, is a very very inspirational. It's very inspired by a Roald Dahl story, which I will not even say which story because then everybody will figure it out. आपने इतना hint दे दिया, ये बहुत है। Not at all. Not the Roald Dahl की इतनी कहानियाँ हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं उनकी, कोई पता नहीं सैकड़ों। अच्छा, ये जो आप बातें बीच में मैं और आमना कह रहे हैं कि उनका अफेयर या रिशु यूं रिएक्ट, तो यू हैव टू रियलाइज कि जो स्टोरी खुलती है फिल्म में भी वो इसी तरह खुलती है। आप फौरन शुरू में देख लेते हैं कि रिशु जो है उसका मर्डर हो जाता है और फिर फ्लैशबैक्स में आप कहानी, दीज आर नॉट स्पॉयलर्स। तो जब वो रानी एक्चुअली जब पुलिस स्टेशन में बैठी हुई होती है, तो जो अपना वो बयान रिकॉर्ड करा रही होती है वहां पे, उसकी स्टेटमेंट के थ्रू वी सी फ्लैशबैक्स के ये हो क्या रहा था, एंड देन वो फ्लैशबैक्स चलते 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 उस मोमेंट तक आते हैं जब ये क्राइम कमिट होता है। सो डायरेक्शन भी बड़ी अच्छी है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, बट अगेन आई फेल्ट आफ्टर हाफ ऑफ द फिल्म इट फॉल्स ऑल ओवर द प्लेस। ठीक है, सेकंड हाफ मुझे नहीं कन्विंसिंग लगा बिल्कुल। ठीक है, मैंने एंजॉय किया और मैं फॉर वंस एक्चुअली बिल्कुल एंड पे जाके मुझे लगा कि अच्छा वो ये होने जा रहा है। तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई वाज नॉट एंटिसिपेटिंग कि इसका, अच्छा, मैंने क्योंकि वो कहानी पढ़ी हुई थी रोल्ड डाल की और मेरी वन ऑफ माय फेवरेट कहानियां हैं, तो आई फिगर्ड इट आउट। मैंने कहा ओहो ये इसका ये है, और ये मैंने फिगर आउट कर लिया, लेकिन बहुत एंड पे जाते हैं। ऐसा नहीं था कि शुरू में मैंने फिगर आउट, बीच में फिगर आउट कर लिया हो कि क्या होने जा रहा है। तो वो एक इंटरेस्टिंग बात है, बिकॉज मैं यूजुअली कर लेता होता हूँ। टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंसेज, मेरे हिसाब से आई थिंक द स्टैंड आउट परफॉर्मेंस वाज दैट ऑफ विक्रांत मासी। इफ आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग, वेरी पावरफुल परफॉर्मेंस, या वेरी गुड एक्टर, बट आल्सो तापसी तो बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, बट मेरे लिए स्टैंड आउट परफॉर्मेंस जो थी वो विक्रांत थी। और वो विक्रांत का मैंने पहली बार काम देखा है, मैंने इससे पहले उनका कोई काम नहीं देखा, और फिर वो मुझे उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी लगी कि मैंने उनको जाके फिर रिसर्च किया और गूगल किया, और पता मुझे चला कि उन्होंने टेलीविजन से
इंडिया में स्टार्ट लिया था, पहले वो बड़े पॉपुलर सोप्स में उन्होंने काम किया है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते अब वो नेटफ्लिक्स में उनको एक मेजर ये ब्रेक थ्रू एक रोल उनको मिला। देन ऑफ कोर्स तापसी, तापसी का मेरे ख्याल में एक सॉर्ट ऑफ यूएसपी हाईलाइट टाइप बनता जा रहा है इस तरह की फिल्में जी। शी डज नॉन कन्फॉर्मिस्ट फीमेल रोल्स जो है ना वो तापसी करती हैं। और मिस्ट्री आई थिंक उन्होंने 2-3 इस तरह के वो थ्रिलर्स या मर्डर मिस्ट्रीज वो कर चुकी हैं। बहरहाल उनकी परफॉर्मेंस में कोई उतार चढ़ाव नहीं था मेरे हिसाब से, परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छी थी। बिल्कुल। वन कुड यहाँ पे आई एम सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, मगर यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी इस वजह कि मैं भूल जाऊँ कि जब हम ये बात करते हैं ना कि जी अदाकार जो हैं वो क्या करें, उनको ऐसे रोल्स मिल रहे हैं, सो दे आर जस्ट परफॉर्मिंग। ये चीज़ आजकल के पूरे क्लाइमेट में और लैंडस्केप में बड़ी फ़र्क पड़ती है कि अदाकार क्या चूज़ कर रहे हैं प्रोजेक्ट। अब तापसी जैसा अदाकार जो है, एक आर्टिस्ट है, वो फिल्में अपनी बड़ी केयरफुली चूज़ कर रही हैं। शी इज़ नॉट डूइंग एनी फिल्म, शी इज़ नॉट डूइंग रिग्रेसिव रोल्स, शी इज़ डूइंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ रोल एंड आई थिंक उससे उनका एक पर्सोना बिल्ड होता गया है, दैट्स हर आइडेंटिटी एंड आई थिंक इट्स कमेंडेबल एंड मोर आर्टिस्ट शुड थिंक लाइक दैट। हाँ, but again, I'm not also the quantity of content being That's created. what I'm saying, the choice of choice quantity से आती है और quantity unfortunately restricted भी हैं पाकिस्तान में, बॉलीवुड में, इंडिया में, बॉलीवुड ना भी, अगर आप इंडिया में टोटलिटी देखें, साउथ, फिर आपका बॉलीवुड and then of course now the OTT platforms, so much just you know so many outlets जहाँ पे आप content create करके डाल सकते हैं, तो इसलिए आर्टिस्ट के पास भी वो चॉइस है। तो ये एक एज है। अगर इस पे सोचना शुरू कर दें लाइन पे तो ये अच्छी लाइन हाँ, वही वाली बात है कि इंशाल्लाह जिस दिन पाकिस्तान में भी कोई बड़ा OTT प्लेटफॉर्म का दरवाज़ा खुल गया तो वो देखिएगा आपके यहाँ पे भी हम इंशाल्लाह देखेंगे कि बहुत बेहतर कंटेंट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। हर्षवर्धन आने भी हैं, सनम तेरी कसम में मावरा के साथ हमने उनको देखा था, वो हीरो के रोल में आए थे वहाँ पे। उनकी परफॉर्मेंस ठीक थी, अच्छी थी, बहुत मतलब मुझे बड़ी प्रेडिक्टेबल टाइप थी। हाँ, ऐसा मुझे नहीं लगा कि कोई बहुत स्टैंड आउट परफॉर्म जैसे विक्रांत की मैं कह रहा हूँ। जी बिल्कुल, ही वाज गुड इन हिज रोल। इतना आर्क भी नहीं था उनके कैरेक्टर का। हाँ, इतना कोई उनकी जरूरत थी भी नहीं। प्रीटी प्लेन स्ट्रेट फॉरवर्ड उनका जो था, जैसा उनकी जरूरत थी वो उन्होंने डिलीवर किया। उनको अच्छा लगना था, मसल दिखाने थे, अपने बाल बढ़ाने थे, वो उन्होंने दिखाया, वो अच्छे लगे, तेल लगा के उन्होंने, हाँ वो अच्छे लगे और वो आई थिंक दैट वाज अबाउट इट। ठीक है, बट ओवरऑल आप रिकमेंड करना चाहेंगे लोगों को? जी बिल्कुल, ठीक है, मैं बिल्कुल करना चाहूंगी, लोग पसंद करेंगे। हफ्ते के रोज अगर आप अपने डिनर के साथ कोई मूवी देखना चाहें, आई डोंट थिंक पीपल वुड लाइक टू वॉच इट विद फैमिलीज दो इन पाकिस्तान में भी, थोड़ा सा रिस्की लगे उनको, जी है ना? रेटिंग आ रही होगी, मैं देख लेता हूँ कि रेटिंग आ रही होगी मेरे ख्याल है 16+ वायलेंस एंड सेक्स। सो या आप बेहतर है कि आप अपनी फैमिलीज के साथ ना देखें। विनिल मैथ्यू जो हैं वो डायरेक्टर हैं और कनिका धिलोन जो हैं उन्होंने इसको लिखा है। तो आमना ने रिकमेंड कर दिया है, मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा, हसीन दिलरुबा। मगर मैं ये भी कहूँगी कि सेकंड हाफ से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें, मेरे ख्याल से। आप कहते हैं रखें, ठीक है। नहीं, मैं ये नहीं कहता, आप फर्स्ट सेकंड हाफ के बीच में मैं नहीं कर रहा, डिवीजन नहीं कर रहा। मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल अगर मेरे एक्सपीरियंस के बारे में आप कहें तो एट द एंड ऑफ द मूवी आई वाज लाइक या आई हैड फन वाचिंग इट। सो ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया। और कुछ हम बात करना, मर्डर मिस्ट्रीज की आप बात कर रहे हैं तो फिर आप कम ओवर टू आई थिंक Ray is I think 4-part series. It's a 4-episode anthology of Satyajit Ray's short stories, available on Netflix. जी, और आपने भी देखी? मैंने भी देखी, लेकिन उससे पहले आई थिंक ये बताना जिन लोगों को शायद ना पता हो, जी, सत्यजीत रे बहुत आई मीन इट विल बी सरप्राइजिंग कि अगर आप कंटेंट के शौकीन हैं और आपको सत्यजीत रे के बारे में ना पता हो। इंडियन फिल्म मेकर, वन ऑफ द इंडिया के क्या बल्कि उनको ही इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म मेकर्स इन द वर्ल्ड। जी बिल्कुल, तो बहुत बड़ा नाम फिल्म मेकिंग की दुनिया का, सिनेमा का, जो उनकी कंट्रीब्यूशन है इंडियन सिनेमा को एंड वर्ल्ड सिनेमा को, वो इतनी बेतहाशा है कि उसके ऊपर पूरा एक प्रोग्राम किया जा सकता है। तो अगर आप उनके बारे में और जानना चाहें, समझना चाहें, तो आप ज़रूर गूगल कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा। उनका बहुत सारी फिल्में जो हैं वो अवार्ड्स क्या इंटरनेशनली रिकग्नाइज हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल बहुत बड़े माने हुए डायरेक्टर्स ने उनके काम से इंस्पिरेशन ली है, ऑनरी ऑस्कर अवार्ड भी उनको मिला हुआ है। तो बिग नेम। तो उनकी शॉर्ट स्टोरीज के ऊपर 4 एपिसोड्स बनाई हैं नेटफ्लिक्स इंडिया ने जी। उनमें से 4 का जॉनरा अलग अलग है, बिल्कुल। तो पहले आपने कितनी देखी उनमें से?
2 देखी हैं, तो मैंने चारों देखी हुई हैं जी। पहली वाली जो है इज अ सॉर्ट ऑफ लाइक अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर। पहली जो है बहरूपिया, बहरूपिया, उसमें द बेस्ट। बहरूपिया नहीं है, पहली वाली है फॉरगेट मी नॉट। रियली? जी, मैंने फिर फॉरगेट मी नॉट नहीं देखी। आपने पहली वाली देखी नहीं है? मैंने बहरूपिया देखी है। ओहो, एक सेकंड मैं खोल लेता हूँ ताकि हमें एग्जैक्टली अंदाजा हो जाए कि कौन सी वाली है। जी, सो पहली वाली है आमना फॉरगेट मी नॉट, जो मैंने नहीं देखी। दूसरी वाली है बहरूपिया, तीसरी वाली है हंगामा है क्यों बरपा, हंगामा है क्यों भरपा, वो आपने देखी है मनोज जी बाजपेयी जी वाली। जी बिल्कुल। और चौथी वाली है स्पॉटलाइट। जी। अच्छा चलें फिर हम बहरूपिया और हंगामा है क्यों बरपा के बारे में पहले नहीं, बात बाकी दो भी आपके साथ हम कर सकते हैं। अच्छा पहली वाली जो चले मैं क्विकली बता देता हूँ। पहली वाली एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये शुरू होती है एक मीटिंग से जो कि एक रूफटॉप बार में एक लड़का और एक लड़की की होती है, लड़का नहीं, एक मर्द और एक औरत की होती है। और एक औरत एक मर्द के पास जाती है और उसको कहती है कि वे हाय कैसी हो, ये वो या फाइन, तुम कैसी हो, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, कॉन्वर्सेशन होती है। तो 2 मिनट बाद मर्द कहता है कि डूड वो तो सब तो ठीक है, तुम हो कौन? तो वो कहती है क्या मतलब मैं कौन हूँ? डोंट यू रिमेम्बर दैट वीकेंड 2 years ago, योर बर्थडे वीकेंड? इज लाइक तुम क्या बकवास कर रही हो, आई डोंट इवन नो यू। हाँ शी लाइक क्या तुम पागल तो नहीं हो? हाँ। हम मिले तुम्हारी बर्थडे पे, हम गए, हम एक और शहर में थे, वी स्पेंड द एंटायर बर्थडे टुगेदर इन बेड इन द पूल, ये वो, एंड ही इज जस्ट लुकिंग एट दिस गर्ल एंड इज लाइक तुम पागल हो गए हो। एंड ही इज लाइक अ फेमस एंटरप्रेन्योर, सो इज लाइक तुम यू मस्ट हैव गूगल्ड ऑल ऑफ दिस एंड तुम इसलिए आ गई। तो कह रही है अच्छा, तो फिर मुझे ये भी पता था कि उस वक्त तुम्हारी मंगनी को 6 महीने हो चुके होंगे। तो वो लड़का थोड़ा सा परेशान होता है कि यार कि ये बंदी कौन है जिसको ये सारी बात पता है। एनीवे वो कहता है कि दिस नेवर हैपेंड, जिस शहर का तुम नाम ले रही हो मैं उसमें कभी गया हुआ ही नहीं हूँ, तो तुम ऑब्वियसली बकवास कर रही हो, सो एफ ऑफ। तो वो बंदी कहती है अच्छा ठीक है मैं जा तो नहीं हूँ, बट मैं तुम्हें ये बता दूं कि हम मिले थे, ये सब कुछ हुआ था, और तुमने मेरा नाम भी अपने मोबाइल में सेव किया था कुछ सी तरह से XYZ करके, जो भी वो बात है, मैं डिटेल में नहीं जाता अभी, स्पॉइलर ताकि आपको ना लगे। तो बंदा कहता है व्हाटएवर। बंदी चली जाती है, उसका फ़ोन बजता है और जो नाम वो कह के गई हुई होती है वही नाम आता है कि दिस पर्सन कॉलिंग। और वो फ़ोन उठाता है और वो बंदी उसको कहती है कि लिसन आई एम सॉरी, तुम्हारा कोई भी रीज़न हो सकता है। हसन का फोन बजा साथ नहीं ही। नहीं, नेटफ्लिक्स खुल गया था। तुम्हारा कोई भी रीज़न हो सकता है इस बात को कहने का कि तुम अभी मुझे नहीं पहचान रहे, तो ठीक है, दैट्स ओके, आई डोंट माइंड, बट आई एम सॉरी अगर तुम्हें किसी बात को बुरा लगा। सो दिस लीव्स अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन दिस गाय, बिकॉज उसको हर कोई कहता है कि यार तुम्हारी फोटोग्राफिक मेमोरी है एंड यूर अ नंबर्स गाय, और तुम्हें कभी कोई चीज़ कभी भी नहीं भूलती। सो हाउ दिस स्टोरी अनफोल्ड्स नाउ इज Interesting. is the concept, and it's Interesting. rather very interesting. I will watch it tonight. हाँ, you must. I will watch it tonight. मैंने पहली जो देखी थी वो बहरूपिया थी, of course played by KK Menon, and मुझे लगा थोड़ी सी एक्स्ट्रा थी बहरूपिया, to be honest. I felt it was a bit again all over the place, because जो उसका एक प्राइमरी थीम बताई हुई है कि एक बंदा है और उसके पास एक ऐसा हुनर है which is passed down by his grandmother, that he is into prosthetics and makeup, और वो इस हद तक अपनी अपीयरेंस बदल देता है कि ही कैन बिकम एनीबडी। सो ही हैज़ अ गॉड कॉम्प्लेक्स दैट मैं खुदा क्रिएट करता है तो मेरे हाथ में भी, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हिज ग्रैंड मदर पासिस डाउन टू हिम, कि हमारे अंदर भी एक खुदा है और हम भी क्रिएट करते हैं, सो वी आर नो लेस। And he is shown having discussions with pictures of devis and devtas on his window, and you know he's talking to them and he says कि तुम लोग create करते हो तो मैं भी कम नहीं हूँ। So he's got a god complex, and उसका जो twist आता है end of the story, again you don't even think कि ये आएगा twist, it's like completely out there. So it's a murder mystery intrigue, a bit of fantasy as Social well, commentary as well. social commentary as well, all of that. I thought it was all over the place actually. I thought कि इसमें बहुत ज़्यादा unnecessary चीज़ें थी। Of course सत्याजीत रे की एक स्टोरी टेलिंग की एक उनका तरीका है एज ए फिल्म मेकर कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिटेल इन एवरी फ्रेम। वो आपको देख के खूबसूरत लगता है कि यू नो अगर एक फ्रेम है तो उसमें आपको छोटी छोटी चीज़ों की डिटेल्स, अगर एक किताब है उसके सफ़ों की डिटेल्स हैं, राइटिंग है, पीछे पेंटिंग है, साइड पे कलम है, and everything kind of comes together. The frames are beautiful, and that's what Satyajit Ray's storytelling was about. अच्छा, सत्यजीत रे का एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता था उनकी कहानियों में था, वो था ह्यूमन एलिमेंट। जी बिल्कुल। और ये बहुत एक सेंट्रल फिगर होता था हर एक उनकी कहानी में, हर एक प्रोजेक्ट में।
इसमें एक्चुअली जो आप बात ये कह रही है ना कि बहुत ज़्यादा लाइक पैराफिनेलिया बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा है, तो वो कुछ लोगों ने, कुछ में रिव्यूज़ में भी इंटरनेशनल भी पढ़ा था, उन्होंने यही बात बोली कि इट काइंड ऑफ टुक अवे फ्रॉम द ह्यूमनिज्म और द ह्यूमन एलिमेंट ऑफ द, मतलब लाइक you didn't require there to be, for example, sex in the story. There was no need for it, but वो भी डाला हुआ है. There was no need for it. There was no need for a bit of vulgarity to be put in. It was a perfectly fine story even without it. Because जो उसकी theme थी, I just thought कि these little frivolities took away from the central took away from the emotion. From the emotion. To the human aspect of बिल्कुल, it. You're right. बिल्कुल. बिल्कुल सही बात. बिल्कुल. दूसरी चीज़ मैंने देखते हुए ये सोचा कि यार अगर हम ये for example पाकिस्तान में देख रहे होते हैं and it's a human story, so हम कहते हैं ओ ये कहाँ होता है ऐसे, तो मुझे हसन ऐसे ये भी ख्याल आया कि यार हम लोगों ने कहानियाँ देख के उनको एंजॉय करना छोड़ दिया है. बिल्कुल सही बात. we're going too much into the technicals कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता. End of the day आप ये डिसाइड करें कि are you enjoying what you're watching or not, and let your imagination open up and go wild. But with Behroopia, I felt that it was being constrained. I didn't enjoy it. What I did enjoy was मनोज बाजपेयी एंड क्या नाम था उसका, मैं अभी आपको हंगामा क्यों है बरपा. हंगामा क्यों है बरपा. अच्छा, पहली वाली में जो मेन कैरेक्टर है वो अली फजल हैं जी, उनको हम काफी देख चुके हैं वो फिल्मों में. उनकी अदाकारी मुझे पसंद आई, अच्छी थी, बट ऐसा भी नहीं था कि अगेन माइंड ब्लोइंग थी. राइट. बट अच्छी थी, डिसेंट उन्होंने अदाकारी की. डायरेक्शन मुझे पहले वाले की इतनी पसंद कोई नहीं आई थी. कॉन्सेप्ट बहुत मजा था. ऑल फोर डायरेक्टर्स आर डिफरेंट आई थिंक. हाँ, तो पहले वाले का मुझे पसंद आया, कॉन्सेप्ट मजे का था, स्टोरी मजे की है, बट डायरेक्शन और अदाकारी को मैं कहूंगा कि वाज ओके, was not nothing exceptional. बेहरूपिया की डायरेक्शन बहुत अच्छी है, but I just felt that it was like बेहरूपिया की डायरेक्शन बेहतर है. के मेनन ने अच्छी अदाकारी बहुत अच्छी की है. वो उनको शाउट आउट जाता है, तो वो जबरदस्त है. अच्छा, तीसरी हंगामा क्यों है बरपा, थोड़ी सी तो पी ली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी, जो कि गुलाम अली साहब की बहुत एक मशहूर मारूफ, गुलाम अली साहब की गजल है जो कि अकबर अलाहाबादी की नज़म है, उस पे गाई गई है और उस पे ये कहानी बनी है. और अदाकार हैं उसके जो मुसाफिर अली, जो मेन प्रोटैगनिस्ट होते हैं आपके, वो मनोज बाजपेयी हैं. उनके साथ जो असलम बेग साहब हैं, ही इज़ ऑल्सो अ वेरी फेमस एक्टर जिनका नाम मैं भूल गई हूँ. हाँ, मुझे भी अभी सॉरी, मैं देख रहा हूँ कि मुझे मिल जाए, लेकिन मैं गलत नाम नहीं लेना चाहूँगा इस वक्त उनका, सो आई एम सॉरी जी. असलम बेग उनके किरदार का नाम, उनके किरदार का नाम है. द व्हाई डिड आई एंजॉय दिस सो मच, ऑफ कोर्स बिकॉज इट वाज मतलब एक बड़ी सिंपल सी कहानी है. 2 टाइम जोन्स हैं, 2 मुसाफिर हैं, वो ट्रेन में बैठे हैं. एक तो ट्रेन इतनी खूबसूरत है. अगेन व्हेन यू टॉक अबाउट ट्रेन, यू टॉक अबाउट जर्नीज, यू टॉक अबाउट देयर इज रोमांस इन इट. गजराज राव नाम, गजराज राव उसमें भी थे मेरे ख्याल है. जी, इन्होंने कहानी बधाइयों में जी. तो आपको ट्रेन के साथ आपका थोड़ा सा एक रोमांटिसिज्म होती है, एक इंट्रीग होती है, एक मिस्ट्री होती है, एक जर्नी होती है. सफर के साथ वैसे भी होती है. सफर के साथ है. आपके कैरेक्टर का नाम भी मुसाफिर अली है. हाँ. और शायरी भी है उसमें. जो डायलॉग है वो बहुत खूबसूरत है, यू नो. जैसे वो एक तरफा कहता है कि आप क्या करते हैं, तो वो कहते हैं कोशिश. You know, I mean, the dialogues are so beautiful. It's so lyrical. I found it to be very. प्रेमिस इसकी ये है कि ये जो भाई हैं जी, जो मुसाफिर अली हैं जी, इन्होंने आज से 10 साल पहले जी, इन्हीं भाई की, जो इनके साथ इसी कंपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, एक बहुत बहुत दिल के करीब घड़ी चुराई हुई, खुशबख्त, जिस घड़ी का नाम होता है खुशबख्त. और अब 10 साल बाद वो उसी ट्रेन वो के डब्बे दोनों में एक ही डब्बे में आमने सामने आ जाते हैं. और ये वाले जो भाई हैं मुसाफिर अली, ये पहचान लेते हैं, पहचान लिया है, इन्हीं से मैंने वो घड़ी. और असलम बेग साहब जो है वो कहते हैं मेरी तो किस्मत बदल गई उसके बाद. और असलम बेग साहब को कोई आइडिया नहीं होता नहीं कि ये वही शख्स हैं जिन्होंने घड़ी चुराई है. हालांकि वो अभी भी उस इंसिडेंट से रिकवर नहीं किए, क्योंकि उनको वो घड़ी बहुत अजीज थी और उनको लगा था कि जब वो घड़ी उनको मिली थी तो उनका वक्त तब्दील हो गया था, और जब घड़ी गई तो भी उनका वक्त तब्दील हो गया. तो ये बड़ा अगेन इंटरेस्टिंग प्रेमिस है. तो आई मीन सत्याजीत रे की स्टोरी टेलिंग ऐसी थी कि देयर वाज ऑलवेज अ ट्विस्ट इन द टेल. तो ट्विस्ट आपको एंड पे मिलता है, एंड आई फाउंड इट वेरी एंजॉयबल. So कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं थी उसके अंदर. तो 4 में से अगर मैं चूज करूँ ना, तो पहले नंबर पे मैं कहूंगा जो पहली थी फॉरगेट मी नॉट, मुझे पसंद आई. दूसरे नंबर पे सर्टनली बहरूपिया. तीसरे नंबर पे जो हमने दूसरे नंबर पे हंगामा क्यों है बरपा. तीसरे नंबर पे बहरूपिया. और चौथे नंबर पे जो कि मेरी लीस्ट फेवरेट और लीस्ट
recommended. लीस्ट रिकमेंडेड स्टोरी है, दैट इज स्पॉटलाइट। अच्छा अच्छा, स्पॉटलाइट में जो लीड अदाकार हैं वो हैं हर्षवर्धन कपूर, जी, जो कि अनिल कपूर साहब के साहबजादे हैं। राइट। वो एक बहुत बड़े स्टार हैं और उनकी एक लुक है स्पेसिफिक, अच्छा, जो वो कराते हैं इस किरदार में या जनरली? उनके उस किरदार में। अच्छा। उस स्टोरी में, उस स्टोरी में वो जो एक्टर बने हुए हैं, उस एक्टर की एक लुक है जो कि वर्ल्ड फेमस है। अच्छा, तो वो जो वो लुक कराते हैं ना, उनकी एक लुक के ऊपर टिकटें बिकती हैं और फिल्म हिट हो जाती है और सब कुछ अच्छा हो जाता है उनकी एक लुक में। तो एक दिन वो किसी जगह पे शूट करने जाते हैं, तो वहां पे एक रिलीजियस फिगर आती हैं जो कि खातून होती हैं, पर एवरीबडी कीप्स टॉकिंग अबाउट हर लुक, कि वो दीदी के दरबार में समथिंग समथिंग एक बड़ा फनी सा उन्होंने वो गाना भी उनका पीछे चल रहा, फनी सा तो नहीं, दीदी का एक गाना चल रहा था। सो ही सीज द स्पॉटलाइट शिफ्टिंग फ्रॉम हिम ऑन हर एंड हाउ ही डील्स विद इट, कि वो बेसिकली जिस स्वीट में उसको रहना होता है, जब दीदी आ जाती है तो दीदी टेक्स ओवर। वो मैडोना का स्वीट होता है, अपेरेंटली मैडोना जब इंडिया गई थी तो वहां पे रही थी। अच्छा। तो उसको निकाल देते हैं एक्टर को और वो कहते हैं कि यहाँ पे तो दीदी रहेंगी, एंड ही सेज के डूड तुम्हें पता मैं कौन हूँ? तो वो कहते हैं हम आपके लिए लाइन से 10 स्वीट्स और खोल देंगे और दीवारें भी हटा देंगे, बट ये दीदी ने मांग लिया तो ये तो दीदी के पास जाएगा। सो दीज थिंग्स रियली पिस हिम ऑफ, एंड देन ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम वो जब देखता है कि उसकी लुक जो है वो भी चली जाती है, because दीदी की look, everybody is talking about Didi's look. Right, right. So But you didn't like it. I didn't like it. Sounds interesting. It sounds interesting, but that's about it. Oh, okay, that's a pity. Because एक तो execution उसकी, मुझे वही वाली बात है, बाकी जो तीन थी they seemed closer to reality. ये वाली जो थी ये मुझे थोड़ी एक अलग जोन में लगी, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इतनी मतलब आउट ऑफ द रियल जाके होगी, अच्छा, कंसेप्चुअली उधर होगी, राइट, बिकॉज मैं उस वक्त अपने इंटेलेक्चुअल मूड में था नहीं। क्या अच्छा मुझे okay. मुझे लगा थोड़ी जबरदस्ती की ओवरली इंटेलेक्चुअलाइज की। अच्छा, तो वो मुझे पसंद नहीं आई। ठीक है, आप देखें तो फिर मैं आपसे आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा। बिल्कुल। दो आपने देख लिए, दो आप और देख लें। जी, मैं दो और देख लूंगी। राधिका मदन के बारे में कहना चाहूंगा, बहुत खूबसूरत है वो। ठीक है, आप जो दीदी का उनका इंटरव्यू करना चाहेंगे आप? मैं जरूर करना। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि नेटफ्लिक्स से राब्ता करें। जी जी, और जो इस तरह का कंटेंट आ रहा है उनके हम इंटरव्यूज करें। जी ठीक है, बिल्कुल अच्छा आइडिया है आपका। मेरे ख्याल है 2 रिकमेंडेशंस काफ़ी हैं इस वीक के लिए। मैंने मूविंग फॉरवर्ड एक करनी पड़े शायद हमें, पता नहीं, 2 तो करनी चाहिए। मैंने अपने इंस्टा स्टोरी पे एक पेज लगाया था हैंड रिटन, जिसपे मैंने कुछ अल्फाज लिखे थे और अपने जितने फॉलोअर्स हैं उनको ये कहा था कि बताएं विच सीरीज हैव आई वॉच्ड, व्हाट इज़ दिस रेफरिंग टू। तो मुझे बहुत लोगों ने डीएम किया, किसी ने कहा परिजात, किसी ने कहा धूप की, बहुत लोगों ने कहा धूप की दीवार। नहीं, इट वाज एक्चुअली आफ्टर आई वॉच्ड मॉडर्न लव, उसका पहला सीजन, which I will talk about in the next episode of Beyond Borders. Content without borders or beyond borders? Content without borders नहीं क्या है? जो आपको पसंद आए। Content without borders नहीं, content without borders sounds like borders and médecins, like doctors without borders. So I would rather it was like beyond borders, border crossing. Beyond borders. Beyond borders. ठीक है, beyond borders. Beyond borders. So in our next episode of Beyond Borders, I would also urge you to watch season 1 of Modern Love. How does धूप की दीवार figure in Beyond Borders? Because it's Pakistani content. No, that's I think we will do a hot bites on धूप की दीवार. नहीं, मैं Beyond Borders में करना चाहूँगा, तो ताकि हमारे नए प्रोग्राम को थोड़ा पुश भी तो ठीक है, तो फिर धूप की दीवार को उसमें कर लेंगे। तो Beyond Borders में फॉल इन करता है धूप की दीवार? जी, क्यों नहीं करता? क्योंकि पाकिस्तानी प्रोजेक्ट जो कि बेसिकली ओटीटी है ना, तो धूप की दीवार वो भी करता है। प्रिंस चार्मिंग भी बहुत लोगों ने हमें कहा है कि उसको प्लीज देख के रिव्यू करें, उसकी भी हम बात करेंगे। जी बिल्कुल। बियॉन्ड बॉर्डर्स बेसिकली कंटेंट दैट एनीबॉडी कैन वॉच फ्रॉम एनीवेयर। जी, लेकिन मैं अभी अपने हैंड रिटन नोट की बात कर रही थी, जो मैं मोहम्मद को दूंगी और मैं उनसे कहूंगी प्लीज चला भी दें। तो इस नोट के ऊपर जितने लोगों ने लिखा कि जी ये है, उनमें से nobody guessed it right. It was actually about modern love, which is a collection of 8 short stories, different love stories of different types of people, and beautiful. 2 सीजन आ चुके हैं, दूसरे सीजन के बहुत अच्छे रिव्यूज नहीं है, लेकिन मैं अगले एपिसोड तक वो भी देख लूंगी। जी, और उसके बाद हम धूप की दीवार ये नेटफ्लिक्स पे, ये प्राइम, दिस इज ऑन प्राइम वीडियो। दिस इज ऑन प्राइम जी, ठीक हो गया। थैंक यू, आप लोगों ने ट्यून इन किया। होपफुली आपको ये नया सेगमेंट पसंद आया होगा। अगर नहीं आया तो भी, और अगर आया तो भी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप चाहेंगे कि हम इसको कंटिन्यू रखें, सेक्शन को ना रखें।
अगर रखें तो by all means please suggest to us shows or movies or Netflix or Amazon Prime content that you'd want us to review and watch, and we'll definitely look into that as well. Till next time, Khuda Hafiz.